Thanks, sir. Mm. Good. Send your writing in the group, please. Good evening, sir. Okay, cool. Send your homework in the group, the writing that you sent me. Good evening, sir. Okay. And today we have somebody with me. You can see who is with me right Anshu now. is sitting behind next to you, sir. Yes, she is here. She is here. Today I'm going to ask you guys to do a reading section. Good Good evening, sir. evening. Anshu lives in your mohalla, sir. In a way, exactly at the corner where we take a turn to get into our mohalla. She lives Oh. right on the roadside. Right. Remember where you came to for the books and Aditi met you? Sanyogita ma'am at the Yes, sir. Yes, sir. college? Yes. Yes, sir. Just opposite in the direction, in the south direction. In the south direction, maybe about 20 meters Near from the there. mandir? Near Just a little mandir. more, about 20. Okay. Yeah. Okay. People, today we are going to read two very interesting stories. Reading and speaking section we are going to do today. 60 years of flight. Look at the pictures, everyone. So you see an aeroplane, but this aeroplane doesn't look like a modern aeroplane today. Yes. And then you see a man. His name is Louis Blériot. Good evening, sir. And good evening. And you see this 1909, the first air journey. So, who are the men? Who is this man, Louis Blériot, in your opinion? Make a guess. Blériot. Blériot. Ma'am, how am I reading this? Louis Blériot. Louis Blériot. I'm reading that way, ma'am? I'm reading that way? Yes. Louis Blériot? Louis Blériot. Ma'am, I have a question, very simple question to ask. Is it the first time that we see silent letters in English words? No, sir. Then when I said Louis Blériot, then why didn't you acknowledge it? That, oh, okay, Louis Blériot. Okay, I'm sir. not saying that if you say Louis Blériot, I have a problem with that. I don't have a problem with that because it doesn't matter how you pronounce the name. It doesn't matter, okay? But is it not a common idea that in English we have silent letters? Yes, sir. Yes, sir. So I read the name. I already read Louis Blériot. Before you read, I said Louis Blériot. Look at this man, Louis Blériot. Yes, sir. Okay. French. So what do you think he did? What did he do? This man, Louis Blériot, what did he do?
Make a guess. I'm not Maybe asking. he Hmm? flies. He flies plane. He flies. This is He present flies. tense. And here you see black and white photo, 1909, black and white photo. The first Oh, air journey is written here, and you are saying he flies aeroplanes. Is it okay? he um, he V2, flew aeroplane. right. So this is He the flew. past tense. When you use the second form of the verb, this is the past He tense, flew. He flew right? planes. So he, instead of saying he flew planes, can somebody go a little more close and say maybe he was the first man who made the first air journey? Maybe Louis Blériot made the first air journey. Can we say that, guys? It is written clearly, 1909, the first air journey, and we see this man's photo here. So is it not enough clue to say Louis Blériot made the first air journey? Perhaps. Air journey. Yes, sir. Perhaps he made the first air journey. First air journey. Now look at some more photos here. 1969, the first man on the moon. Moon. And here we see some people. Mm. Neil Armstrong, Michael Collins, Buzz Aldrin. What's your opinion? What did these people do? All they are all astronauts, sir. Hmm. What did they do? Good evening. Good evening, sir. Good evening, Apurva. They Look at the were photos evening, and make a sir. guess about what these three people did. Make a guess. Good evening, sir. Good evening, Sulekha. To the moon first, sir. They went to the moon. went to the moon. Went to the They moon were first. the first men. They were the first Went. men on the moon. They were the, They were the first men on the moon. repeat the words and value your words, what you're saying out of your mouth. They were the first men They were the first man on the on the Men. moon. They were the first men on the moon, right? On the moon. Now, if you want to translate this sentence into Hindi, of course, there is no direct translation. They were the first men on the moon. वो लोग पहले लोग थे चंद्रमा पे. ऐसा कोई हिंदी नहीं बोलता है. जाना वर्ड यूज करते हैं हम लोग. लेकिन इंग्लिश में जाना के बगैर भी बोल रहे हैं. कैसे बोल रहे हैं? They were the first men on the moon. So when I said they were the first men on the moon, next question is, when did they do it? When did they land on the moon? When did they go to the moon? Good evening, sir. in Hey, 16 July Sana. 1969. In 1969. They went to the moon in 1969. And when did Louis Blériot made the first air? When did he make the first air journey? In 1909. In 1909. 1909. So when you are reading, did you realize something? नहीं, realize तो नहीं हुआ होगा क्योंकि मुझे याद है when I told you the story about Bill, वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था he was born in 1951 or 52 और बाद में 64 में he was married, तो आप लोग उसको भी नॉर्मल मान लिए कि 13 साल में शादी हो गई थी. आपने कोई नहीं पूछा सर he got married when he was 13. किसी ने नहीं बोला था मुझे. तो आज तो कुछ और बोल दें आप, पॉसिबल है नहीं. चलिए कोई नहीं, फिर भी मैं आपको हाईलाइट कराता हूँ. Man made the first air journey in 1909. Okay, go beyond the English language and appreciate the fact that man made the first air journey in 1909. Before 1909, we never made an air journey. The first air journey was in 1909. 1909. But the dream to make air journey is an old evening, sir. journey, or it was an old journey, right?
We always wanted to. अच्छा, आप लोग क्या कर रहे हैं पहले क्लियर कर दीजिए। क्या आप लोग मेरे बात सुन रहे हैं या कुछ और चीज में बिजी हैं कि सर का काम है बोलने दो, हम लोग अपना अपना काम करो। कोई पढ़ने लगा है टेक्स्ट, कोई कुछ और सोचने लगा, ये या मेरी बात के साथ जुड़े हुए हो? पहले सवाल यही है। आर यू विद मी? Yes, Because I sir, I can am with you. clearly see Renu is not with me, Sanyogita ma'am is not with me. They were busy with something Yes, else. sir. No, sir. I am listening to you. I am Only hearing to listening you. only listening to me. Renu, were you only listening to me? Yes, sir. Liar, fever. Sir, Sorry, sir. she is going in her hometown, or she is going to meet you? Why do you care, Ravi? He, I'm thinking just she is from living something Why somewhere do else. you care? Focus on the lesson, man. Stop poking your nose in matters which are not important to you. He's asking whether you have come to see me or whether you have come to your hometown. All right. She has come to see me only. You have a problem with that? No, I'm happy with that. Uh-huh. Okay, let's focus. Everyone, yes. let's Yes, focus. sir. So, man first made the air journey in 1909. Now, this dream of flying was an old dream or was a new dream? What do you think about that? We wanted to make air. Okay, Chiku, please keep yourself muted. Already muted, sir. Already Uh, muted. where is this Hmm. noise coming from then? Anybody is on their laptop here? Good evening, sir. Yes, sir, I am, sir. Okay, I'm gonna make you the co-host, Ravi. And if anybody is noisy, just mute them. Okay. Okay, let's see. I was saying this idea that man wanted to fly in the air like a bird. I mean, it is a very, very old fantasy for human beings. You know the word fantasy? I taught you the word in the previous lesson. Remember the word Yes. fantasy? Yeah. Yes, Yes. sir. Sir, Yes. you are not making me. You are making me RK. You are. Oh, sorry. I made RK the co-host. RK, RK now. It is RJ. Sorry about that. Hello, good evening, sir. Hello, Shabnam. Good evening. So, people, read this line. Planes to rockets in 60 years. Are you surprised that man first made an air journey Sir, in Anshu sits next to you. She lived in Bihar, Sharif. Everybody question to you. bad English? Everybody is Everybody, curious. everybody is Everybody is curious. curious. हिंदी में बोलती क्या बोलती हैं आप? सबके मन में Everybody is सवाल चल रहा है। curious. सबके मन में सवाल चल रहा है। तो जब आपके मन Everybody में is सवाल curious चले तो आप about क्या हैं? Anshu. Curious हैं आप. Everybody is asking. Anshu is sitting. Everybody is surprised that you are sitting here in the class. Well, she has got a new Oh, sir, I'm not technology. surprised. She has a new technology, you know. She can transport herself to wherever she wants And sir, physically. Without sweets. without sweets? Sweets for what? Sweets for what, Ravi? जानते हो? She is transferring herself रुको ना बेटा, without रुको ना. sweets. वो हम एक बिहारी लैंग्वेज में एक वर्ड जानते हैं हम लोग, चुटकट. ठीक है? कौन है वो चुटकट? चुटकट लड़का कौन क्लास में? Who is the चुटकट in the class? Everybody knows who is the chutkat in the class. And it is it hot? Okay. I think it's not very hot here. It is okay. Okay.
Of course it is okay. So let's see. Where were we? हमारे कल्चर में है कि हम लोग किसी के यहाँ जाए तो पहले कोई खाने के लिए कहे तो हमें ना बोलना चाहिए, है ना, सबसे पहले। और जानते हो कुछ कल्चर्स में बहुत गंदा ही है। कुछ कल्चर्स में अगर आपने ना बोला तो होस्ट क्या हो जाएगा, ऑफेंडेड, कि आपने ना बोल दिया। ठीक है, आपको खुशी खुशी हाँ बोलना चाहिए। ठीक है, अलग अलग जगह के कल्चर्स। हमारे यहाँ है क्या ऐसा कल्चर कि एक बार में हाँ बोलना है? सर गो एनीवेयर, कोई भी कुछ ऑफर करे तो पहले माँ बाप ने क्या सिखाया, पहले क्या बोलना है? नहीं नहीं नहीं, बोल, नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे, Say no कुछ नहीं first. है, ऐसे वैसे का बहाने मारने। फिर वो इंसिस्ट करेगा, फिर आपको हाँ बोलना है, तभी इज्जत है। हाँ कि ना? दिस इज कल्चरल वैल्यू, ओके, ट्रेडिशन। बट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, if you go to somebody's house and if they offer you something, you don't say no. Saying no is considered rude. So when you're learning English, learn about other parts of the other cultures as well, how things are in different parts of the world. So guys, this dream of man flying into the air is an old dream or a new dream, or was an old dream or was a new dream? Maybe old dream. Maybe you're not very sure. I think Because if a man has person always wanted felt to do, curious. Yogita ma'am, perhaps it is the language problem, or I don't know. Man has always felt curious about why birds can fly and we can't fly. Man has Yes. always been curious, no? Yes. We always wanted to be in the air, just like birds. But our body is not evolved in that way, that we can stay in the air. Gravitational force pulls us down. But technology made it possible. Yes. And in 1909, for the first time, a man called Louis Blériot made an air journey. Was it a very, very important event in history? Yes. Yes, sir. Yes. It was an How many important people history. realize that it was such an important moment in history that man made an air journey for the first time? Yes, sir. It is important history. Before 1909, we could not fly. We did not fly in aeroplanes. So, how many years did we wait? आपको क्या लगता है? How many years did we wait to be able to fly in the air? कितने साल हम लोगों ने इंतजार किया आपके हिसाब से? What do you guys think? कितने साल इंतजार किया हम लोग हवाई जहाज उड़ाने के लिए? After our country freedom, yeah, when हम लोग मतलब इंसान। Maybe जस्ट 20 or मैंने हिंदी में पूछ दिया है कि हम लोगों ने कितने साल के इंतजार के बाद हवाई जहाज उड़ाया। हम लोग मतलब इंसानों ने हवा में उड़े, हम लोग एयर जर्नी किया, हम लोगों ने एक जगह से दूसरे जगह चले गए हवाई जहाज से। कितने साल के बाद किया हमने सर? 19वीं सदी के बाद। मेरा Maybe, सवाल है sir. कितने साल बाद, कितने साल का इंतजार था मेरे दोस्तों? तो शांति जो है ना आपके मुंह, मैं हिंदी में बात कर रहा हूं ना आप सबसे, फिर भी आप चुप है सब, जबकि मैंने आपसे क्या पूछा है कि इंसान ने कितने सालों के इंतजार के बाद हवाई जहाज में उड़ान भरी, हवाई जहाज से एक जगह से दूसरी जगह गया, एयर जर्नी किया। वाओ। जब मनुष्य में अक्ल आई होगी तो हमको लगता है कम से कम 100 साल के बाद। 100 साल ठीक है। के बाद जब उन्होंने सब कुछ आविष्कार करना शुरू किया, जब सब कुछ बनाना शुरू किया, उसके तो कम से मैं कम 100 बहुत साल के निराश बाद। हूँ, सॉरी टू से संयोगिता मैम, मैं बहुत निराश हूँ। इंग्लिश अपने जगह पे है,
मैंने जानबूझकर हिंदी में ये बात पूछी है, आप सबसे जानना चाहूंगा, सब लोग अपना अपना जवाब दीजिए। कितने सालों के इंतजार के बाद हम लोगों ने हवाई जहाज उड़ाई? maybe 60 years, sir. 40 years or 50 All right, sir. 60 years, 60 years, sir. 20 years. मैं क्या 20 पूछ रहा हूँ years. दोस्तों? सवाल समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम लोगों ने कितना लंबा इंतजार किया होगा जिसके बाद हम लोग हवाई जहाज में पहली बार उड़े होंगे? हम लोग मतलब इंसान। इसलिए मैं कभी कभी चिढ़ के बोल देता हूं कि जो दिमाग आपके दिमाग में लगा हुआ है वो खोखला कर देता है आपके दिमाग को, सोचने ही नहीं देता। वो दिमाग कौन सा है वो पता चल जाएगा थोड़ी देर में। आप लोग ऐसे घटिया आंसर्स दे रहे हैं। हिंदी में पूछ रहा हूं मैं आपसे, इंग्लिश की कोई बात नहीं रह गई। अपूर्वा जवाब दीजिए, रेणु जी जवाब दीजिए, निशात, ऋषिकेश, सब लोग हिंदी में जवाब दीजिए। रवि, कितने सालों के इंतजार के बाद ये चीज पॉसिबल हो पाई? सर 60 ईयर्स 60 years. यहाँ पे There are just 60 years. अपूर्वा जोर से डांटूंगा, बहुत जोर से डांटूंगा, इतना जोर से डांटूंगा रोने लगोगी। हिंदी में बात करें कि इंग्लिश में? अपूर्वा, सर 60 सालों के अंतर। हिंदी से बात कर रहे हैं इंग्लिश में? हिंदी में बात करें ना, मेरा सवाल सुन लो, उसके बाद अपने आप को बेवकूफ बात साबित करना। कितने सालों के इंतजार के बाद हम लोगों ने पहली बार हवाई जहाज में उड़ान भरी? 1909 साल। कम से कम 60 साल के बाद। तब मैं समझता हूँ कि हाँ, इंग्लिश सिखाना मुश्किल है आप लोग को, इसलिए मुश्किल है। क्या बात है, तुम कुछ कहो। क्या बात है, क्या बात है। मान गए हम आप लोगों को। कोई नहीं। उज़मा ने कहा 1909 साल के बाद। मुझे अच्छा लगा जिस तरह से आप सोच रहे हो उज़मा। ये दुनिया कितनी पुरानी है दोस्तों, हम लोग इसमें कब से हैं? आपके देवताओं ने कब बनाया हम लोगों को? बता तो थोड़ा पूछ के अपने अपने भगवान से। सर तो सबका तो जवाब अलग अलग रहे सर। शायद लेने दो ना जो है सर मे जवाब। भी 1911 में पहली बार मैंने जहाज उड़ाया गया। कितने साल का इंतजार पूछा है? कितने साल का इंतजार? इतनी देर से बोल रहा हूं, कितने साल के इंतजार के बाद इंसान ने पहली बार हवा में जर्नी की? 1909 साल या 1908 साल। 1910 साल सर। 11 में ना हुआ है। मान गए लेकिन क्या बात है, 1910 साल मान गए लेकिन। सर। 1910 सालों के बाद, क्योंकि 1911 में जहाज उड़ाया गया फर्स्ट टाइम। मे बी सर, आई एम नॉट कंफर्म। 1910 सालों के बाद पहली बार 1911 में पहला विमान उड़ाया गया था। बेटा, आप लोग ना बहुत निराश किए मुझे आज, पता है। मैं जानता हूं, मैं इसीलिए निराश होता हूं क्योंकि मैं आप लोग को समझदार इंसान मान के चलता हूं, लेकिन आप लोग प्रेशर में, हमेशा प्रेशर, सिर्फ सही होने का प्रेशर आपको नॉर्मल बातचीत करने नहीं देता। आप बचपन से पढ़ाई लिखाई टीचर के साथ जुड़ते हो सही 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 के चक्कर में, कि देखा आप लोगों ने क्या अपने आप को साबित किया। अभी मैंने एक सवाल पूछा कि कितने सालों के इंतजार के बाद हम लोग पहली बार हवाई जहाज में उड़े। मैंने बताया हम लोग मतलब इंसान। कोई कहा 60 साल। ये 60 साल वाले लोग तो खैर मुझे बहुत भाए, बहुत गजब भाए, बहुत गजब भाए मुझे। उन्होंने तो खैर मेरा दिल जीत लिया। बाकी कुछ लोग, भाई बताओ हम लोग कब से इस धरती पे इंसान? कुछ बोलोगे या बंद हो जाओगे यार? कुछ तो बोलो यार, कम ऑन। शबनम, कब से हम लोग इस दुनिया में? सर ये तो किसी को नहीं पता ना, लेकिन हाँ अगर एरोप्लेन के
सर हम लोग जहां तक जानते हैं सर 1400 साल पहले से दुनिया स्टार्ट हुआ है। जब से प्लेन आविष्कार होना चालू हुआ तब से फिर अगर हम डेट में प्लस करना चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले कब क्या हुआ उसे कोई जानता नहीं है। दुनिया 1400 साल पहले बनी शबनम? क्या सर? दुनिया 1400 साल ये पहले ऐसा बनी? ऐसा कहा जाता है, सब लोग सुनते हैं 1400 साल पहले से ये दुनिया चल रहा है, बट तो पता तो नहीं है। तो फिर ईसा पूर्व कहाँ गया? मैं आज संन्यास ले लूंगा दुनिया से, पढ़ाई लिखाई सब चीज से। आज जवाब जो सुनने को मिल रहा है, दुनिया 1400 साल पहले शुरू हुई शब्द, ऐसा सुनने को मिला आपको? और कोई बताओ भाई, दुनिया कब शुरू हुई होगी? कब से इंसान इस दुनिया में? तो कब से कोई पता ही नहीं है तो कैसे बता सकते हैं हम हाँ सही बात है। दुनिया कब से स्टार्ट हम तो हुई? टाइम पूछ रहे होंगे, घड़ी का कितने बजे इतने बजे पैदा हुआ इंसान, यही पूछ रहे होंगे हम तो, है ना? आप लोग के पास कॉमन सेंस नहीं है दोस्तों, नहीं कि आप इतना भी कह दे सर कि हजारों लाखों साल से, खाली इतना खाली बोल देते हो जाता। लेकिन नहीं, आपको तो पता ही नहीं है ना, कैसे जवाब दे सकते? आपको किसने बताया नहीं है ना आज तक कि इंसान कब आए इस दुनिया में। सही है मेरे दोस्तों। अपूर्वा तुम भी चुप रही इस सवाल के जवाब में कि इंसान कब आए इस दुनिया में। सर सर अगर जैसे कि हम लोग 10वीं बार के दूसरे अगर के नाम पे बीच में बोलने से पहले परमिशन लेना चाहिए रवि। हम अपूर्वा से बात कर रहे थे, डिसिप्लिन। यस अपूर्वा। हिस्ट्री के अगर देखें सर तो ये तो लगभग 3 मतलब 2 या 3.5 मतलब लाख साल अगर पहले। हम स्कूल नहीं गए हैं और ये फैक्ट नहीं जानते हैं तो हम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। नो खाली ये सर, पूछना मतलब है मेरा। साढ़े 3 लाख साल लगभग 3.5 लाख साल पहले ह्यूमन एग्जिस्ट किए थे, मतलब आ, धरती पे से। और वो देखता होगा चिड़िया को उड़ते हुए, हाँ देखता, यस सर देखता और ही उसके था मन में क्या चलता होगा? कि संयोगिता मैम, ऐसे क्या चलता होगा उसके मन में? सर अगर चिड़िया उड़ मेरा सकता है तो अपूर्वा सोचना हम अभी ये लोग। अभी है रहने सर दो, कि जब भी मैं नाम ले लूं किसी का तो फिर उसको जवाब देने दिया करना आप लोग। मेरा संयोगिता मैम सोचना क्या यह चलता है होगा? कि मनुष्य तो धरती पर बहुत साल पहले आए सर, लेकिन जब से उन्होंने अपना आविष्कार शुरू किया, पहले आग का आविष्कार, पत्थर का आविष्कार किया, पत्थर से आग बना, आग, फिर उसके बाद पत्थर से जो भी अपना औजार बनाया ये वो, तो उसके बाद धीरे धीरे जब पहिए का आविष्कार हुआ, फिर चक्के का आविष्कार हुआ, उसके बाद उसने सोचा होगा कि हमको भी कहीं हवा में उड़ना चाहिए, पर हम क्यों नहीं हवा में उड़ सकते हैं। तो ये तो मेन एग्जैक्ट टाइम हमको नहीं पता है सर। तो आपको लगता है किसी को पता है? और हम नहीं एग्जैक्ट किस टाइम पूछ रहे थे। नहीं, एग्जैक्ट टाइम मतलब कब से शुरू हुआ आपने पूछा ना, कब मैंने उसके कहा दिमाग में। कितना इंतजार किया होगा इंसानों ने, राइट? करीब आई थिंक 100 150 हजारों साल लाखों तो साल। हुए। किसी ने कहा 100 साल, मुझे याद है संयुक्ता सौ मैम ने डेढ़ कहा था सौ 100 साल। हाँ। कब से सौ हाँ साल मैम? हाँ, आजादी के पहले नहीं, कब से सौ आजादी, साल तो नहीं, मतलब आजादी। नहीं। अरे आजादी क्यों मिली हमें? आजादी क्यों मिली? Good evening, sir. कल्पना। अब कल्पना को पूछिए कब I can आविष्कार हुआ। see सर आप पूरा Anshu कंफ्यूज behind of कर you. देते हैं सर, इतना बोल पूछ कर। Sir, I can see Anshu behind of you. यस अंशु इज हियर। Oh, sir. सर I want to स्पेशली do. इनवाइटेड है। हमने Yeah, सोच once लिया I एक said एक that, दिन हर sir, एक never. लड़की को पहले बुलाया जाएगा क्लास में ऐसे बगल में बैठने के लिए, अगले दिन संयुक्ता मैम की बारी। हम बिहार शरीफ नहीं आ सकते। आई ओके। कैन नॉट कम तो दोस्तों, टू बिहार आप लोग शरीफ। एक सीधे सवाल को कितना कॉम्प्लिकेट किए। इसका जवाब सीधा सीधा बोल सकते थे सर। हमको लगता है इंसान तो हजारों लाखों बहुत साल लंबे पहले। समय से सोचता रहता होगा कि चिड़िया उड़ सकती है, हम लोग नहीं उड़ पाते, क्यों नहीं उड़ पाते। इसके लिए कोई आविष्कार की जरूरत नहीं थी संयुक्ता मैम। ये ख्वाहिश जानने के लिए, ख्वाहिश रखने के लिए कि यार बर्ड्स उड़ते रहते हैं, हम लोग नहीं उड़ पाते, ये जानने के लिए किसी को कोई आविष्कार की जरूरत नहीं थी। एक ख्याल लाने के लिए कि हम लोग नहीं उड़ पाते हैं। अच्छा,
ये जो आज 2024 चल रहा है, इसका क्या मतलब है? 2025 स्टार्ट हो गया 2024 सर। साल हो गया सॉरी, दुनिया को 25 स्टार्ट हो गया, स्टार्ट इसका क्या मतलब है? 2024 साल दुनिया हो गया सर, 25वां स्टार्ट हो 1400 गया। साल पहले दुनिया शुरू हुई थी, सबने आपको नहीं सर, 2024 साल हो गया दुनिया को दुनिया को स्टार्ट हुए हुए। 2024 स्टार्ट इस बात का दुनिया। ये सबूत है कि 2025 से स्टार्ट हो गया है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हमारे स्कूलिंग की स्थिति देखिए, रेनू आप देखिए, सब अपूर्वा आप लोग भी देखिए, ठीक है? शबनम, अशोक यस सर। राजा एक थे भारत के, जिन्होंने बहुत बड़ा मौर्य साम्राज्य स्थापित करा था। पता है वो कब थे? यस सर। बताइए। उनकी स्थापना कब हुई थी? जी। मौर्य साम्राज्य की सर डेट इतना याद नहीं होता है। डेट नहीं पूछ रहा हूँ, एग्जैक्ट आइडिया दीजिए। क्यों लग रहा है आप लोगों को कि मैं आपसे कोई भी एग्जैक्ट डेट पूछ रहा हूँ किसी भी चीज में? मौर्य सर साम्राज्य में अगर मैं पूछूंगा डोनाल्ड ट्रंप कहाँ का है, तो आप मुझे उसका एड्रेस बोलेंगे कि एड्रेस नहीं पता है, कि आप सीधे बोल सकते हैं अमेरिका? सर 300 ईसा पूर्व शायद सर। अच्छा शबनम, 300। ईसा पूर्व क्या होता है शबनम? ईसा पूर्व, क्या सर? ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा पूर्व। ईसापुर? हम्म। ईसापुर तो कोई जगह का नाम लग रहा है सर। ईशापुर, सर मैं आई। वो ईशापुर यीशु मसीह के जन्म के पहले की बात है। ईशापुर मतलब वो यीशु ओ मसीह के जन्म के ईसापुर। पहले, जगह का नाम नहीं है। क्या ईशापुर कोई लिखा जगह जाता है होगी? हिस्ट्री में, ईशापुर तो ईसा मसीह के जन्म के अब दिक्कत पहले। ये ना कि आज जो पढ़ाई होने वाली है वो फ्लॉप हो गई, फ्लॉप, खत्म। वो नहीं होने वाली सक्सेसफुल। आप लोग को यस। मैं सिर्फ ग्रामर पढ़ा दूंगा आज, ठीक है? बाकी मैं स्टोरी नहीं पढ़ाने वाला वो वाला, क्योंकि आप स्टोरी पढ़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं हो। आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने सीधे इंग्लिश हटा दी। सना, यस सर। सना, दुनिया कब से चल रही है, अंदाजा कुछ है? 2024 साल से। अरे राम रे राम। पहले 20वीं शताब्दी चल रही है ना सर, 2024 कैसे कह सकते हैं सर? क्योंकि 2025 से स्टार्ट हो गया इसलिए। लाखों अरबों साल पहले शुरू हुई। उस्मा, किसने कहा था? भाई ने कहा था 1909 साल बोलने के लिए। तुमने नहीं सोचा? सर। तुमने सोचा? बेटा 1909 तो वो गिन रहे, इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। मैं क्या ही पढ़ाऊं तुम लोग को, कुछ नहीं पढ़ा सकता आज। सर कल का लाइफ स्टोरी सर। अरे बाकी लोगों का रह गया था सर। खत्म करो सर लाइफ स्टोरी, अंशु ये को क्या देखो अभी खिला रहा है? रियलिटी देखो आज का कहाँ पहुंचे हो हम लोग। कोई ना बोलना हम स्कूल गए थे, प्लीज। सर भूख हमको लगा हुआ है, आप सर अंशु को कल खिला बचा रहे रहा हैं। क्या था? हम्म। सर मैं ये समझ नहीं पा रहा, इतना एग्जैस्परेटेड महसूस कर रहा हूं ना। ऐसा समझ लो कि तुम क्लास 10th में बैठे हो जाकर, ठीक है, टीचर के तौर पे पढ़ाने के लिए, और वहां लोग को 4 और 6 मतलब 10 जोड़ना नहीं आ रहा। अब तुम क्या पढ़ाओगे उनको आज? तुम शुरू किए थे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने को, और जब तुमको दिखा कि नहीं नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, पूछते गए एक जगह आया जहां पर 4 और 6 10 नहीं कर पा रहे, तो तुम अब क्या ही पढ़ाओगे? अभी वो वाली फीलिंग आ रही मुझे। तुम सर 4 6 को, 46 भी होता है सर। हाँ जी, 4 और 6 46 भी होता है। हाँ शबनम, लेकिन ये मजाक का विषय नहीं है। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सीरियस। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि जब आप इंग्लिश यस। भाषा सीखना चाहते हैं तो आप इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखने के पहले हमारे पास कॉमन सेंस होना चाहिए, कुछ चीजों का अंदाजा होना चाहिए। जो मैं यहाँ पर इंग्लिश में लाइन लिखी, मैं इसको हिंदी में भी बोलूंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। मैं हिंदी में बोलता हूँ। प्लेन से रॉकेट 60 साल में, मात्र 60 साल का गैप है पहले फ्लाइट में और पहले इंसान जो मून पे पहुंचा उसके बीच। 20वीं सदी में एविएशन में जो प्रोग्रेस हुआ वो गजब का था। कुछ समझ नहीं आया आप लोग को। मैं हिंदी में बोल दिया, ठीक है। जो इंग्लिश में लिखा है आप लोग कह दोगे कि मेरी इंग्लिश खराब है, मैं ये टेंस नहीं पता, मुझे ये वर्ड नहीं पता, मुझे ये ग्रामर नहीं पता। वो सब साइड करो।
ये लैंग्वेज सिखाने से पहले मुझे ये भी तो जानना है। मैं आपको बहुत कुछ ग्रामर बता सकता हूँ, ये ऐसे होता है ऐसे होता है, लेकिन जो आज स्टोरी हमने चुनी थी बताने के लिए, उस स्टोरी को अप्रिशिएट करने के लिए आपके पास कोई जानकारी नहीं है दिमाग में दोस्तों। मैंने कहा कि 1909 में इंसान पहली बार हवाई जहाज से उड़ा, ये कितनी बड़ी घटना थी। आपके दिमाग में इसका कोई सही अंदाजा नहीं है कितनी बड़ी घटना थी। बात समझो दोस्तों, कोई भी चीज हवा में जाती है तो धप से गिर जाती है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसके बाद फाइनली 1909 में आदमी हवाई जहाज से एक जगह से उड़ा और दूसरे जगह जाके दूसरे कंट्री में जाके उतरा। ये कब हुआ? 1909 में। इसका मतलब हजारों लाखों साल के इंतजार के बाद इंसान में ये क्षमता आई कि वो अपने आप को ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ हवा में रख पाए। और जो लोग सोच नहीं पाते उनको समझा दूं, बस मजाक नहीं, क्योंकि मजाक का कोई जगह नहीं है यहाँ पे। इंसान ईसा मसीह के जन्म से 1 से गिनती होती है ग्रेगोरियन कैलेंडर में, और 2025 है, यानी कि ईसा मसीह 2025 साल पैदा हुए थे, ऐसा वो मानते हैं जिन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया है। उनका कैलेंडर आज पूरी दुनिया यूज कर रहा है। इस कैलेंडर के हिसाब से एक साल में 365 दिन होते हैं। हर 4 साल पे एक दिन ऐड कर दिया जाता है जिसको लीप ईयर कहते हैं, क्योंकि धरती सूरज के चारों तरफ जाने में 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है। आप सबके अपने अपने कैलेंडर्स हैं, अपने अपने धर्मों के कैलेंडर्स हैं। मुझे उस बारे में कुछ कमेंट नहीं करना, बस इतना बताना है कि वो इनकरेक्ट है ज्यादा। हिंदू कैलेंडर्स होते हैं, वो होते हैं 360 दिनों के, 12 महीने 30 दिन, भारतीय 36। मुस्लिम कैलेंडर 354 दिनों के होते हैं। और इस हिसाब से मैं एग्जैक्ट नहीं हूं, मेरे किसी वर्ड को एग्जैक्ट मत पकड़ना, तो 354 की जगह वो 352 भी हो सकता है, मैं पक्का नहीं हूं, ठीक है। 356 भी हो सकता है, मैं पक्का नहीं हूं। कोई जानता हो तो अभी बोल दे कि हाँ इतने दिनों का होता है। तो इससे ये है कि ये सब जो कैलेंडर है वो उतने पक्का नहीं। तो आज 2025 चल रहा है, पूरी दुनिया इसी को मान रही है, ठीक है। अब वो सब आप सिर्फ अपने धर्म के फेस्टिवल्स मनाने के लिए अपने अपने कैलेंडर्स यूज करते हो, बाकी और कोई काम के लिए अपने कैलेंडर्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके कैलेंडर्स गलत हैं। गलत मतलब, अगर धरती इस दुनिया सूरज के एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे लेती है, तो आपके के पास 354 दिन 360 दिन वाला कैलेंडर क्यों है? जब धरती एक चक्कर लगाती 365 दिन लिखती है, तो आपके भी कैलेंडर में 365 दिन होने चाहिए था ना, लेकिन नहीं है। इस वजह से आप लोग को जोड़ तोड़ करके वो मैनेज करना पड़ता है, ठीक। अब सुनिए, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि धरती 2025 चल रही है, इसका मतलब 2025 साल पहले ये गिनना शुरू हुआ ग्रेगोरियन कैलेंडर। और शबनम, आपके धर्म के हिसाब से अभी हिजरी 1400 कुछ चल रहा होगा या 1300 कुछ चल रहा होगा, मैं श्योर नहीं हूं। 1300 1400 कुछ, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है बता दो। 100 सर, हाँ जी, 1400 हिजरी चल रहा है अभी। 1400 हिजरी चल रहा है। अगर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो अभी शक संवत विक्रम संवत 2 तरह के कैलेंडर्स होते हैं, शायद, मुझे पक्का नहीं पता इतना ज्यादा इस बारे में, लेकिन ऐसे ही कुछ 7000 6000 साल चल रहा होगा उस हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। तो दोस्तों सिर्फ इतना कहना है कि ये गिनती शुरू हुई, इंसान तो हजारों साल से, अगर आपने 4वीं 5वीं क्लास की पढ़ाई करी होती तो आपको पता होता कि हम लोग जंगल में रह रहे थे। 10-12 हजार साल पहले खेती का प्रमाण मिलता है आर्कियोलॉजिस्ट को, कि 10-12 हजार साल पहले हम लोगों ने खेती करना शुरू किया है। उसके पहले हम खेती नहीं कर रहे थे, ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं। हो सकता है मिल जाए तो उसको पीछे ले जाया जा सकता है, लेकिन जो प्रमाण मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्यों के हिसाब से 10-12 हजार साल पहले खेती शुरू हुई। उसके पहले हम लोग जानवर इधर से उधर करते थे और फिर कंदमूल इकट्ठा करके खाते थे।
एक जगह पे नहीं रहते थे। कुछ लोग काफी लंबे समय तक घूमते फिरते रहे हैं, घुमंतू कहते हैं उनको। तो दोस्तों, आपको ये सब बेसिक जानकारी चौथी, पांचवी, छठी क्लास की किताब में दी जाती है बच्चों के तौर पे, आप लोग के दिमाग में नहीं थी। नहीं तो आप ऐसी बकवास ना करते कि हम लोग और जब से इंसान समझदार है, इंसान यानी होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस जो हम हैं, तो ये जब से ही, इसको तो हमेशा से लगता होगा पक्षी को देख के कि हम भी उड़ पाते काश। इसीलिए आपको हर एक धर्मों की कहानियों में कुछ ऐसी कहानियां मिलेंगी जहां कोई उड़ा, क्योंकि उड़ने को डिवाइन माना जाएगा, क्योंकि आदमी तो उड़ नहीं सकता ना जब तक ऊपर वाला ना चाहे। आप समझ रहे हो? तो हर एक धर्म की कहानी में कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा आपको जिसमें उड़ने को बहुत वैल्यू किया जाएगा, कोई ना कोई कहानी उड़ने से जरूर जुड़ जाएगी। ठीक है? तो उड़ना वॉज समथिंग दैट वॉज इम्पॉसिबल। आदमी हवा में रह जाए, गिरे नहीं, ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि हो ही नहीं पाता था। किसी को पता नहीं था क्यों नहीं हो पाता था। फाइनली इस मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया 1909 में। हम लोग हवाई जहाज से, हम लोग मतलब इंसान हवाई जहाज से उड़े, एक कंट्री से उड़े दूसरे कंट्री में पहुंचे। ये पहली दफा हुआ। तो कह सकते हैं कि हजारों लाखों साल के इंतजार के बाद ये चीज हुआ होगा। ये बात कह सकते हैं हम लोग कि हजारों लाखों साल के इंतजार के बाद इंसान फाइनली उस जगह पे पहुंचा जहां वो हवाई जहाज में उड़ सकता था। अगर आप रामायण की बात करेंगी तो उसमें एक पुष्पक विमान का जिक्र आता है, जिसमें उड़ करके वो रावण जो है सीता माँ को लेके गया था। तो ये पुष्पक विमान जो है उड़ने वाला विमान बोला जाता है। यानी कि इमेजिनेशन में इंसान के था ना। आप जितना पुराना सोचना चाहे रामायण को सोचे, इसने कॉमन सेंस तो आपके पास है समझने के लिए कि आदमी उड़ने की ख्वाहिश बहुत लंबे समय से रख रहा होगा। खाली इतना बोल दीजिए हाँ या ना। उड़ने की यस ख्वाहिश इंसान के दिमाग में बहुत लंबे समय यस से सर, है। यस सर, कितने लोग को अग्री करना है कि हाँ, इंसान उड़ने की यस ख्वाहिश तो सर, काफी हम लोग लंबे को समय तक रख रहा पता था? है। सारे लोग अपना अपना हाथ उठा दें, हाँ बोल दें कि हाँ, उड़ने की ख्वाहिश काफी लंबे समय से रही है। यस Yes, सर, sir. Yes, sir. इसका मतलब लाखों साल, हजारों साल बोल सकते थे। इसका जवाब जो मैंने आपसे पूछा था, कितने लंबे इंतजार के बाद ये चीज हासिल हुई इंसान को, तो ये जवाब दे सकते थे आप कॉमन सेंस यूज करके कि हजारों लाखों साल के बाद इंसान पहली बार उड़ा 1909 में। कब? अब वो 1909। 1909 यहाँ लिखा है, आप 1911 कहीं और पढ़े, मुझे कोई 1909। फर्क नहीं पड़ता। वो 2 साल 1 साल से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, राइट? मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो फैक्ट्स क्या है, मैं फैक्ट्स के, मैं यहाँ जीके क्लास नहीं चला रहा कि मैं आपको जीके पढ़ाऊं। मैं बस कॉमन सेंस आपसे उम्मीद कर रहा था कि आप लोग कह देंगे सर लंबे इंतजार के बाद किया सर, इंसान 1909 में पहली बार उड़ा, यानी हजारों लाखों साल का इंतजार हो रहा होगा इसके पीछे। इंसान तो हमेशा से चाहता होगा उड़ना, नहीं चाहता होगा कि हवा में उड़ सके वो पक्षियों की तरह? हम्म। Yes, sir. फाइनली ये रियलिटी कब बनी? व्हेन डिड इट बिकम अ रियलिटी? 1909 में। 1909। 1909। 4-5 हजार साल, 10,000 साल तो अभी हो गए हम लोग को खाली इस तरह से जीते हुए, जैसे जी रहे हम लोग। आपको नहीं पता है क्या? आप किस लिए स्कूल आप लोग गए हैं अगर ये बात आपको नहीं पता है कि 8-10 हजार साल से तो हम लोग भारत में खाली बैठे हैं। अभी आपको हड़प्पा सभ्यता, सिविलाइजेशन मिली, ये सब कितनी पुरानी मिली है? एविडेंस कितने मिले हैं? हड़प्पा सिविलाइजेशन के एविडेंस कितने पुराने हैं? 4,000, 5,000, 6,000 साल पुराने हैं। टर्की में एक शहर है 7,000 साल पुराना है। तो इंसान तो काफी समय से है ना इस दुनिया में। कि आप लोग अब वो क्लास तो नहीं बना दोगे, कहोगे हम लोग 5,000 साल से इस दुनिया में है, तो फिर मैं क्या ही बोलूंगा आपको, फिर क्या ही पढ़ाऊंगा आपको? तो अब समझना, हजारों लाखों साल कोशिश तो हमेशा से इंसान करता रहता होगा कुछ ना कुछ उड़ने का, कि कुछ नहीं करता होगा? नहीं, कोशिश तो करता था। कोशिश करता था या करता होगा बोलना सही होगा? करता होगा। कॉमन सेंस, जिस करता ही होगा हिसाब से। कोशिश। हाँ। कभी यस छलांग सर। लगाता होगा मैंने हवाई, ये पहाड़ हाँ से ये सब पानी में, प्रोसेस देखता क्या हो वो कितने देर रुकते हैं, फिर भी नहीं रुक पाता होगा। कोशिश तो उसकी रहती होगी हवा में। क्यों कुछ लोगों को छलांग लगाना पसंद है ऊंची जगह से नीचे, क्यों पसंद है बताइएगा?
क्यों कुछ लोग पहाड़ से पानी में छलांग लगाना पसंद करते हैं, क्यों? Because they feel how birds fly. क्योंकि उनको एहसास होता है थोड़ी देर के लिए कि बर्ड्स कैसा फील करते होंगे। बंजी जंपिंग क्या है? Bungee jumping, वही थोड़ी देर के लिए feeling वो of फीलिंग, flying. वो थोड़ी देर के लिए फीलिंग कि flying. कैसे होता है हवा में रहना। और ये ग्लाइडिंग, जो पैरालाइडिंग जो क्या होता है? पैराग्लाइडिंग क्यों लोगों को करना पसंद है? क्योंकि इंसान को अच्छा लगता है हवा में रहना। इंसान की हमेशा से ख्वाहिश रही होगी कि हम हवा में उड़ सकें। अब आपसे सवाल पूछता हूं, कितने लंबे इंतजार के बाद आदमी पहली बार उड़ा 1909 में? 60 साल बोलोगे? नहीं बोलने सर, वालों लाखों हजारों बोल दो। साल। 60 साल, 100 साल, 1900 लाखों साल। नो सर। क्या जवाब देते हो यार। कभी कभी यू गाइस जस्ट लेट मी डाउन सो बैडली। इंग्लिश तो अपने जगह है, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं। मैं इंग्लिश सिखाऊंगा आज नहीं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल सिखाऊंगा, लेकिन कॉमन सेंस मैं सिखाऊंगा आपको। ये जवाब था आपका? 100 साल? आप आजादी आजादी लेके बैठी हुई थी संयोगिता मैम, इसका आजादी से क्या लेना देना था? आई फील एब्सोल्युटली astonished at the lack of common sense of you guys. I never expected this from anybody here, that you guys would not have this much common sense to answer that man has always wanted to fly. And finally this dream came true in 1909. कितने कोशिश और फेलियर हुई होंगी? काफी सारी सर। एक फिल्म आई हवाई ज्यादा, एक फिल्म आई थी, उसमें बताया गया था कि एक भारतीय बहुत पहले उसने हवाई जहाज बना लिया था। इसको प्रोपेगेंडा फिल्म कहा कुछ लोगों ने, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि भारत जो है ना, हर जगह के लोग ऐसा करते हैं कि जो कोई चीज दूसरे लोग बनाए उसको अपना बताना चाहते हैं कि मेरा है वो। जैसे हवाई जहाज का जो कल्पना है वो भारतीयों का था, क्योंकि हमारे पास समझदारी थी। कुछ लोग अभी भी कहते हैं, मुझे नहीं पता वो सही है कि गलत, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है फॉर्मूला कि कैसे हवाई जहाज बनाया जा सकता है, और उस फिल्म में इसी कहानी को दिखाया गया है। अब इस टसल से खाली इस बात को समझिए, खाली इस झगड़े से इस बात को समझिए कि हवाई जहाज पे क्लेम करा जाता है। ये कहानी बताई जाती है भारत में हजारों साल पहले की, ठीक है, कि भारत में हजारों साल पहले कोशिश हुई हवाई जहाज बनाने की और बन गया था। मुझे नहीं पता कि ये सच है झूठ है, मुझे बोलना ही नहीं इस बारे में, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं, आपके कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं कि फाइनली 1909 में ये फैक्ट है कि उड़ा। चाहे 1909 हो, चाहे 10 हो, 11 हो, क्या फर्क पड़ जाता है, 1-2 साल, राइट? लेकिन आप इतना तो मानोगे ना कि इंसानों ने लाखों साल इंतजार किया इस चीज के लिए। मुझे ये बताना, 1909 में जब लोगों को बताया गया होगा कि हम लोग हवाई जहाज से उड़े हैं, तो लोगों का क्या रिएक्शन रहा होगा? वो खुश हुए होंगे और बिलीव करना बहुत इम्पॉसिबल रहा होगा। थैंक यू। और अब सुनो, 1909 में जो चीज 1908 में इम्पॉसिबल लग रही थी, 1908 में भी इम्पॉसिबल लग रही होगी, 1901 में भी इम्पॉसिबल रही होगी कि हवाई जहाज से उड़ेंगे, क्योंकि फाइनली हम लोग कब किए ये पहली बार? 1909 में। तो जो 1900 में जो चीज इम्पॉसिबल थी कि हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री नहीं जा सकते थे उड़ के, पॉसिबल नहीं था, ठीक है, उन लोग को 60 साल बाद ये सुनने को मिला कि हम चांद पे पहुंच गए। जिनको ये बात मानने में आसानी नहीं हो रही थी कि हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा सकते हैं हवाई जहाज में, उनको 60 साल के बाद क्या सुनने को मिला कि हम नहीं, चंद्रमा पे पहुंच गए 60 साल के अंदर। अब बोलो कैसा लगा होगा? मतलब आप जब 10 साल 12 साल के हो और आपको सुनने को मिल रहा है कि आदमी पहली बार हवाई जहाज उड़ा करके एक कंट्री से दूसरे कंट्री पहुंचा। आप 12 साल के हो, 14 साल के हो, 15 साल के हो, और आपको ये पता चलता है। और आप मरने से पहले आप 84 साल के हो, 60 साल के बाद 74 साल के हो, 75 साल के हो, और आपको क्या सुनने को मिल रहा है कि आदमी चंद्रमा पे पहुंच गया है।
कैसा लगेगा आपको? आप में से किसी की क्षमता नहीं है सब इमेजिन करने की। पता है क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में कीड़ा लगा है। इमेजिन नहीं कर पाएंगे आप कि कितना बड़ा शौक रहेगा उन लोगों के लिए जो 75 साल की उम्र में ये बात सुने होंगे, क्योंकि वो पहली बार सुने होंगे कि आदमी हवाई जहाज चलाया, पहली बार सुने होंगे 10, 12, 14 साल की उम्र में। और 60 साल की उम्र के बाद 60 साल का गैप था। तो बताइए क्या हुआ? शबनम, there is no point in turning off the camera, शबनम, trust me. Okay, I know I'm being very mean. मैं बहुत कड़वा बोल रहा हूं आप लोगों को, लेकिन जो बोल रहा हूं वही बोल रहा हूं, ठीक है? अब मुझे बताइए क्या हुआ दोस्तों, क्या हुआ? कुछ अब बोले क्या हुआ, तो अंदाजा लगाने के लिए कह रहा हूं, कोई फैक्ट नहीं मांग रहा हूं कि ये हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? कुछ अंदाजा लग रहा है? इंसान के अंदर खुशी हुआ होगा, खुशी के आंसू बहा होगा। चलिए, शुक्रिया। आप पढ़िए तो शायद कुछ समझ में आ जाए। देखिए, planes to rockets in 60 years. For the first time, we flew planes in 1909. First air journey was made in 1909. And in 1969, we were on the moon. Does it sound like a normal thing to you? Amazing. बात समझ में आ रही है? Yes. 1909, we made the first air journey in 1909. And 60 years later, we were on the moon. How does it sound? जो चीज, छोटी सी चीज हासिल करने में लाखों हजारों साल का इंतजार लगा कि हम लोग हवाई जहाज उड़ा पाए। 1800 में नहीं कर पाए, 1700 में नहीं कर पाए, 1600 में नहीं कर पाए, 1909 में किए। बात समझना, मात्र 60 साल, only 60 years, and we were on the moon. अब आओ इंग्लिश लैंग्वेज पे, काहे कि दिमाग का तो दही कर दिया मैंने। अब इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। प्लेन्स टू रॉकेट्स इन 60 years. There are just 60 years. There are just 60 years between the first flight and the first man on the moon. The gap of these two events is just 60 years. Yes. There are just 60 years between the first flight and the first man on the moon. कुछ समझ में आ रहा है? मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं, शायद समझ में आए। 1 साल तक बच्चा अब पापा चप मम्मा दुदू, बस इतना, राइट? 1 साल तक, है ना? 1.5 साल में मम्मी, दुदू, पप्पा, बाजार, 2 वर्ड्स। और वही बच्चा 2 साल होते होते बात करना शुरू कर देता है लगभग। अब वो बहुत सारे सेंटेंसेस बना रहा है, वो तेज हो जाता है, आखिर में मोमेंटम आ जाती है लैंग्वेज लर्निंग में। अगर वो 1.5 साल में 2 वर्ड सीखा तो 3 साल में 4 वर्ड सीखे, फिर 4.5 साल में 6 वर्ड सीखे, ऐसे चले, तब तो इंसान जिंदगी और बात नहीं कर पाएगा, है ना? लेकिन पहले 2 साल में वो 1-2 वर्ड्स बोलता है, लेकिन 2.5 साल 3 साल होते होते वो कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है, हर तरह के सेंटेंस बोल रहा होता है कि मेरे जाने के बाद आना ना मम्मी तुम, 3 साल की उम्र में बोल रहा होता है। यानी कि आखिर में उसकी ग्रोथ कैसी हो जाती है लैंग्वेज की? एकदम शुरुआत में कैसी होती है? धीरे धीरे धीरे, राइट? 1.5 साल लगता है। पहला वर्ड कब बोलता है बच्चा? After 6 months. 6 months, 8 months, फर्स्ट वर्ड मम्मा। Yes, sir. तो अगर वो हिसाब से चले तो हर 6 महीने पे 1 वर्ड जुड़ेगा, तो सोच लो 40 साल की उम्र में 8 वर्ड, 80 वर्ड्स होंगे हमारे पास। No, sir. गौर कर रहे हो ना? Yes, sir. लेकिन वैसा नहीं होता। आप पहले 6 महीने में 1 वर्ड बोलते हो, बच्चे बोलते हैं, लेकिन अगले 6 महीने में वो 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड बोलते हैं, लेकिन अगले 6 महीने में वो सेंटेंस बनाने लग जाते हैं। 1.5 साल के बच्चे कहीं कहीं छोटा छोटा सेंटेंस बोल रहे होते हैं, और 2.5 साल होते होते पूरा बोलने लग जाते हैं, अच्छे से बात करने लगते हैं। आप देख रहोगे अपने आसपास क्या हुआ कि शुरू में ग्रोथ स्लो रही,
फिर आखिर में ऐसे हो गया। वैसे ही ये किस फील्ड के ग्रोथ की बात हो रही है? हवाई जहाज उड़ने वाली बात हो रही है, जो हम लोग 1909 में पहली बार हवाई जहाज उड़ाए और 1969 में 1969 में हम लोग चांद पे थे। तो ये ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट जो है, किस टेक्नोलॉजी में है? डिस्कवर ऑफ साइंस। कौन सा साइंस, कौन सा फील्ड? किस फील्ड में डेवलपमेंट हुआ दोस्तों? बता सकते हो उस फील्ड का नाम जिस फील्ड में डेवलपमेंट हुआ? इंजीनियर्स, मे बी इंजीनियर्स। हाँ बिल्कुल, कौन से फील्ड में? हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी। नहीं नहीं नहीं, उसको कहते हैं, मे बी इसको इंजीनियर्स। कहते हैं एविएशन। क्या कहते हैं? एविएशन। एविएशन। Let me explain. You have a government, right? The government has an agriculture minister. There is an agriculture minister in the government. Yes. The agriculture minister has a job. His job is to look after the farmers and the farmers' problems, right? Yes. Yes. There is a tourism minister as well now. Yes. The tourism minister looks after tourists and the new places that can be developed for tourists. There is a transport minister too, right? What is the job of the transport minister? To make roads, make road, yes. right? So that Yes. transport can be done more easily. Okay, tell me, there is a railway minister too, isn't it? Yes, sir. And the railway minister's job is to start new railway stations, to start new trains. Yes. And which minister will decide there should be a new airport? Which minister will decide that there should be a aeroplane service between these two cities? Which minister will decide? हिंदी में सर बड़ा अटपटा नाम है। बोल दीजिए। बहुत बढ़िया रेनू, थैंक यू रेनू, थैंक यू। हाँ जी, बाकी लोग बोले। Which minister will decide there should be a new airport, there should be a new air service between these two cities? Which minister's job is it? वायु सेना वाले। No, their job is to fight, not to decide airports where there will be a new आर्मी ऑफिसर नहीं ये। हिंदी में कोई बता सकता है रेनू के अलावे? नहीं ना? एविएशन मिनिस्टर। बहुत अच्छे मोनी, बहुत अच्छे। एविएशन मिनिस्टर। हाँ, रेनू ने हिंदी में बताया उड्डयन मंत्रालय, उड्डयन मंत्री। कौन सा? उड्डयन मंत्री। कितने लोगों ने सुन रखा था? Okay, so that's right. In English, it is the aviation minister. Which minister? Aviation minister. Aviation minister and aviation ministry. So now you understand the word aviation? Yes. It has a connection with relation with flying, right? Relation with flying. Okay. Understand? Aviation has relation with trains or tourism or flying. Flying. So that's why aviation minister will decide where there should be a new airport, which two cities should be connected, right? Which cities should not be connected. They will decide. The aviation minister will make these decisions. Now, take a look here. Planes to rockets in 60 years. There are just 60 years between the first flight means 1909, right? First flight. And the first man on the moon means 1969. In the 20th century, progress in aviation was phenomenal. In the 20th century means 1900 something, that is called 20th century, okay? अभी कौन सी century चल रही है दोस्तों? The 21st century. Right now we are in the 21st century. But last century was the 20th century. In the last century, progress in aviation was phenomenal. Phenomenal means ordinary or extraordinary? Extraordinary. Phenomenal means ordinary or extraordinary? Extraordinary, because within 60 years, मात्र 60 साल में, within 60 years,
We flew from planes, we moved to rockets and we reached the moon. सोचो क्या टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया मात्र 60 साल। अगर कुछ ना तो 1900 साल तो जोड़ सकते हैं ना गिनती से। जब से गिनती शुरू हुई तो जैसे कहाँ गई उज़मा ने कहा था कि 1909 साल तो कम से कम वेट किया ना इंसानों ने हवाई जहाज उड़ाने के लिए। अगर गिनती खाली देख ले तो ऐसे तो हजारों साल वेट किया, लेकिन उतने साल में नहीं हो पाया उड़ना। लेकिन जैसे ही उड़े हम 1909 में, 60 साल के अंदर हम लोग क्या कर दिए? रॉकेट बना लिए और और चांद पे चले गए। चांद पे चले गए। चांद पे चले। चांद पे जाना वॉज ए स्मॉल थिंग और अ वेरी वेरी अनबिलीवेबल थिंग। थिंक अबाउट इट। अनबिलीवेबल। वेरी प्रॉब्लम क्या है मेरे बच्चों? प्रॉब्लम क्या है मेरे बच्चों? गौर से सुनो मेरी बात, ओके? तुम्हारे टीचर्स किसी बात को एहसास नहीं कराए, तुमको रटवा दिए। तुम सब जानते थे 1969 में व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट गाय, द वन हु फर्स्ट नील आर्मस्ट्रांग लैंडेड ऑन द मून। जीके में रटते हो, अप्रिसिएशन नहीं है तुम्हारे अंदर। They completed their syllabus ना सर। मैं कोई बात का कोई डिफेंस नहीं ले सकता, They didn't इसीलिए give मैंने me अपने any- बच्चे को स्कूल नहीं भेजा था, इसी वजह से, ठीक है? क्योंकि वो आपके अंदर से छीन लेते हैं वो क्षमता। एक इंसान होने के नाते आप जिन चीजों को अप्रिशिएट करोगे, ठीक है, वो अप्रिशिएट करने की क्षमता छीन लेते हैं वो आपसे। वो आपको एक लाइन में लिमिट करवा देते हैं। बचपन में 5, 6 साल, 7 साल की उम्र में रटवा देते हैं चांद पे उतरने वाला पहला इंसान नील आर्मस्ट्रांग था। वो बच्चा कभी फील नहीं करता कि क्या बात हुई, क्या हुआ, कैसे इंसान चांद पे पहुंचा, और इस वजह से उसकी पर्सनालिटी में कोई ग्रोथ नहीं आता। उसके लिए सिर्फ एक लाइन है याद, रट्टा मार के रखने वाला। अगर आप अपने बच्चों की परवाह करते हो दोस्तों, तो उनको, आपकी उम्र निकल गई, ठीक है, आपके बच्चों की बात, आपके छोटे भाई बहनों की बात, उनको ना चीजों को अप्रिशिएट करने के लिए कहो। क्या अब तुमको समझ में आ रहा है मेरा उतना फ्रस्ट्रेशन क्यों था उस समय? क्योंकि मैं कौन सी बात एहसास कराना चाह रहा था तुम लोग को, और तुम कहाँ थे? कहीं नहीं थे एहसास करने के जगह पे। तुम एहसास कर पाते कि कितनी बड़ी चीज हुई कि 1909 में हम पहली बार हम लोग हवाई जहाज उड़ाए, एक जगह से दूसरी जगह गए, और मात्र 60 साल में हम लोग कहाँ पहुंच गए थे? मून पे। यानी एक आदमी अपने लाइफ टाइम में दोनों चीज महसूस कर लिया, फर्स्ट टाइम। भाई मान लो कोई लड़का 20 साल का हो 1909 में, ठीक है, 20 साल के इंसान को पता है कि आदमी उड़ नहीं सकता, इधर से उधर उड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि 1909 नहीं आया था। सोचो ना, 1908 तक उसको सुनने को नहीं मिला कि हवाई जहाज कोई चीज है जिससे आदमी इधर से उधर हो जाए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री चले। उसको नहीं पता ये चीज, 1908 तक नहीं पता। आप समझ रहे हो मेरे दोस्तों? 1909 में उसके पास खबर आती है, दुनिया के सारे जगहों पे खबर गई होगी कि एक आदमी ने हवाई जहाज उड़ा दिया। वो एक जगह से दूसरे जगह पहुंच गया हवाई जहाज उड़ा के। तो वो 20 साल की उम्र के आदमी को पहली बार सुनने को मिला। इमेजिन करो, तुम हो 20 साल का इंसान जो अब तक जी रहा है ऐसी दुनिया में जहां हवाई जहाज नाम की कोई चीज नहीं होती है, ओके? तुम 18-19 साल के हो चुके हो, और तुमको सुनने को मिलता है कि एक आदमी एक कंट्री से दूसरे कंट्री पहुंच गया हवा में उड़ के। अब आपको कैसा लग रहा है? 20 साल के हो आप बचपन से आज तक ऐसी कोई चीज नहीं सुने थे कि ऐसा कुछ होता है। इमेजिन कर सकते हो, है तुम्हारे अंदर वो कि दिमाग कीड़ा खा चुका है? मैंने पहले ही बोला था, क्या तुम्हारे अंदर है? अभी भी ला सकते हो इमेजिनेशन? तुम हो 18-19-20 साल के आदमी जिसको सब कुछ देखा हुआ है, कभी तुमने नहीं सुना कि कोई हवाई जहाज जैसी चीज होती है जो इधर से उधर कर दे आदमी को। आपको पता है घोड़ा होता है, एक नई चीज आई है कार, ठीक है, आपको पता है 1909 में कार नई चीज थी दोस्तों, ठीक है ना? तो एक नई चीज आई है कार जो चलती है बहुत तेज रोड पे, आपको पता चल रहा है। आप गांव में रहते हो, आपको शहर के बारे में सुनने को मिला है कि बहुत अमीर इंसान जो होते हैं ना, राजा महाराजा जो होते हैं ना, वो कार से चल रहे हैं आजकल। कार क्या है? तो एक ऐसी चीज है जो खुद से चलती है, घोड़ा नहीं लगता उसमें, बैल नहीं लगता। उसके पहले तक क्या चाहिए था दोस्तों? कार आने के पहले तक क्या चाहिए था कोई चीज खींचने के लिए दोस्तों? जानवर लगते थे ना। और आपको पहली बार पता चल रहा है कि नहीं, एक गाड़ी आई है ना जिसमें कोई जानवर नहीं लगता, वो खुद चलता है। तो ये भी सरप्राइजिंग लगेगा ना एक इंसान के दिमाग को, अच्छा ऐसा हो रहा है। और आप एक गांव में रह रहे हो दोस्तों, ठीक है, आप 19 साल के हो, आपको सुनने को मिला है कि एक आदमी हवाई जहाज चलाया। हवाई जहाज ही क्या, अरे उड़ के पहुंच गया एक कंट्री से दूसरे कंट्री में।
आपका दिमाग कैसा महसूस कर रहा है? 20 साल के हो आप, चक्कर घिन्नी, ऐसा कैसे हो सकता है? गिरा नहीं हो बीच में? वो बीच में गिरा नहीं, ऐसा सवाल आएगा मन में। यस, अमेज्ड हो गया होगा वो। अब उसके बाद आप ही हो वो इंसान, 60 साल और जाने दो, 80 साल के बूढ़े हो अब आप, ठीक है? आपको याद है वो जो सुना था आपने 20 साल में कि आदमी हवाई जहाज उड़ाया था, ठीक है? अब आप 80 साल के हो और आपको अभी क्या बता रहा है? पता है आदमी चांद पे चला गया। अब आप एक 80 साल के बूढ़े इंसान हो, महसूस करो, क्या महसूस कर रहे हो? तो सवाल मन के Shocking, अंदर, very अमेज्ड हो shocking, गया very होगा। surprising. अमेज्ड हो गया वो, कैसे आदमी चांद पे चला गया। जो बातें मैंने बताई, अगर यही बातें आपको स्कूल में बचपन में बताई गई होती इसी तरीके से जैसे मैंने बताई, तो क्या आपका दिमाग ज्यादा खुला होता चीजों को महसूस करने के लिए, या तोते की तरह रट्टा मारते होते आप? जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्लास शुरू होने से पहले आप लोगों में से किसी ने 60 साल कहा था। पूर्वा कहाँ हूँ? आज तो चेहरा दिखाना बनता है दोस्त, दिखाओ चेहरा। 60 साल दिखाओ, कैसा लग रहा है? बट सर, क्या बोलूं? अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो मैं ये किस सब चीज से चिढ़ता हूँ कि कोई बात समझा जाए, महसूस किया जाए, उसके हिसाब से बात किया जाए, सही गलत सही गलत। रवि तुम भी 60 साल वालों में से थे ना? और कौन था? ऋषिकेश था 60 साल वाला, वो भी पढ़ के वहां बोले जा रहा है, सामने कुछ लिखा रहे, बाकी हम अपने आप को एकदम बेअकल साबित करने के लिए तैयार बैठे। वहां 60 साल लिखा था, इसलिए तो। और मैं हिंदी में बात कर रहा था दोस्तों, इंग्लिश में नहीं। तुम नहीं छुप सकते इस चीज के पीछे कि सर हम आपकी बात नहीं समझे। मैं हिंदी में बात कर रहा था लगातार। मुझे बहुत बुरा लगता है, और मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये चीज तुम्हें तुम्हें कष्ट देगी आगे लैंग्वेज सीखने में। ये तुम्हारी आदत है राइट रॉन्ग के पीछे भागने की। अप्रिशिएट करो चीजों को। तुम्हें लगा होगा कि सर का आज मूड खराब है, इतनी प्यारी सी बच्ची मेरे बगल में बैठी और मेरा मूड खराब होगा? हाँ बताओ, मेरा मूड खराब होगा? नहीं था हम मेरा लोग मूड का खराब, खराब है तुम सर। लोगों ने मूड खराब किया मेरा। मानो इस बात को, ऐसे घटिया ऊट पटांग जवाब दे दे के, हर बड़ी हर बड़ी। अब जानो हाउ इट ऑल हैपेंड। ये जो मेरी मेरी सोच है ना हर चीज को महसूस करने की, इसकी वजह से मुझे बहुत फायदा होता है। मैं भले ही फैक्ट्स भूल जाऊं, ठीक है, लेकिन एहसास नहीं भूलता। तो आप भी एहसास रखें चीजों के। कुछ चीजें दिमाग से निकलनी आसान होती है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं। आज आप ऐसे समय में जी रहे हैं, फैक्ट्स ऐसे मोबाइल पे फटाक से आ जाएंगे गूगल करके, बट एहसास नहीं आता तुरंत। एहसास आता है, सर एहसास रखिए चीजों के लिए। विच स्टोरी वुड यू लाइक टू रीड? कौन सा स्टोरी पढ़ना पसंद करोगे? योर फेवरेट स्टोरी? Which story would you like to read? Choose your story. The first year journey. It's up to you. There are two stories here. Okay? Everybody will choose one story that they would like to read. Choose a story for yourself. Yes, sir, the first air journey. Okay. 909, the first air journey. Who will be Shabnam's partner? पार्टनर वाला खेल खेलना है या अकेले वाला करना है? अच्छा एक काम करो, पार्टनर वाला खेल बेकार हो जाएगा भाई। आप एक काम करो, आप ना दोनों स्टोरीज पढ़ोगे। ओके, यू गाइज विल रीड बोथ द स्टोरीज and you will do the answer to questions here, 6 questions here. अच्छा चलो पहले समझाता हूँ questions को। When and where did the journey begin? So either the first journey or the second journey. They're both journeys. Do you agree? The first is an air journey and the second is the journey to the moon. So when and where did the journey begin? When you read, you will find out the answer.
Look at the next question. How long did it take? How long did it take? How long did the journey take? You will find out the information. How far was the journey there? Which journey was longer? The first air journey or the first man on the moon? The moon journey, the journey to the moon. फर्स्ट एयर जर्नी Which journey was longer? मतलब क्या हुआ? कौन सी कौन जर्नी सा ज्यादा journey लंबी बहुत थी? ज्यादा टाइम लिया हाँ, ज्यादा टाइम लिया नहीं, लंबी थी, जर्नी लंबी थी. Which लंबी journey थी was यस सर longer? The first air journey or the journey to the moon journey to the moon. The journey to the moon. was longer, obviously. So you will find out the information. How far was the journey there? Number 4. How fast did they go? How fast did he go? So when you make a journey, then you go at a certain speed, right? So you will find out the speed as well in the text when you read. Next. Where did the journey end? When you read, you will know where the journey ended. I think everybody knows where the journey ended in the second story. Yes. Where did the journey end, everybody? On the moon. On the moon. On the moon. Thank you, Kalpana. Thank you, Apurva. On the moon. The second journey ended on the moon. Everybody knows, obviously, it was the journey to the moon and it was a successful journey. So it ended on the moon. And question number 6, in what way was this flight a beginning? So for that, you have to read, okay? You have to read. And after this, you will read again more carefully and answer the questions in exercise 5. And everybody will send their answers to me. अच्छा, तुम्हें एक बात का एहसास हुआ है मेरे साथ अभी रहते रहते इतने झेलने के बाद मुझे कि तुम्हारा सही गलत का टेंशन लेना तुम्हारे हित में है या नहीं है? पहले ये पूछ रहा हूं. प्रोसेस फॉलो करना तुम्हारे हित में या सही गलत का टेंशन लेना तुम्हारे हित में? Process फॉलो करना. वो तुम्हारे हित में. सही गलत का टेंशन लेना छोड़ दो दोस्त. प्रोसेस फॉलो करो. प्रोसेस जो बोला जा रहा है प्रोसेस करो. प्रोसेस में गलती होगी वो सही कर लेना. बाकी रिजल्ट अपने आप सही होगा अगर प्रोसेस सही है तो. हाँ या ना? और अगर प्रोसेस गलत है तो आंसर सही हो के भी क्या फायदा? रिजल्ट सही हो के भी क्या फायदा? Because what matters more when we are trying to learn something? What matters more, the end result or the process? The process matters. I'll tell you why. याद करना, मैंने बोला था कि कुछ लोग हैं ऐसे जो तुमसे अच्छी इंग्लिश बोलते हुए अभी दिखेंगे, अभी करंट में, ओके? तुमसे अच्छी इंग्लिश बोलते दिखेंगे, लेकिन उनका प्रोसेस वैसा नहीं है जैसा मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं. तो एक समय आएगा जब वो वही रह जाएंगे और तुम उनसे आगे बढ़ोगे. क्यों? प्रोसेस की वजह से. ऐसे समझो मेरे बच्चों कि 2 रास्ते पे चल रहे हैं 2 लोग, ठीक है? और एक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, शॉर्टकट लिया है, ठीक? वो तुमसे बहुत आगे है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका रास्ता आगे बंद है, उसको नहीं पता ये बात, और तुम्हें दूसरे रास्ते से ले जाया जा रहा है जो लंबा है. तो तुम काफी पीछे हो, लेकिन ये रास्ता बंद नहीं है. अब मुझे ये बताओ, शुरू में वो तुम्हें अंगूठा दिखाएगा ना कि देखो तुम पीछे हो, मजाक उड़ाएगा ना, लेकिन बाद में उसको क्या करना पड़ेगा? यू टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका रास्ता क्या बंद है, वो गलत रास्ता लिया है. अब ये एनालॉजी मैं क्या देना चाह रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है? बता सकते हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इस एनालॉजी से? बता सकते हो कोई? फाइनली लॉन्ग रूट पे ही आएगा. और मैं आपके सीखने से क्या कनेक्शन बनाना चाह रहा हूँ इसका, कुछ बता सकते हो आप? एक सही प्रोसेस में सीखिए आप. मैं बताता हूँ, मैं अभी बताता हूँ अरेंजमेंट दोस्तों, अच्छा होना मैं बताता हूँ चाहिए. दोस्तों, मैं बताता हूँ दोस्तों, मैं बताता अगर सही रहेगा तो बहुत आगे तक चीजें हूँ. जाएगी. मैं आप ये समझ बहुत नहीं लंबी पाए ना, नहीं समझ पाए. मैं बता देता हूँ. एक तरीका है, कल्पना कल फंसी थी उसमें, मेरे से बात हुई थी कल्पना की, ठीक है?
आप कोई सेंटेंस सुनते हो तो उसका हिंदी सोचते हो, और कोई हिंदी सेंटेंस सुनते हो तो उसका इंग्लिश सोचते हो, ठीक है। बाकी आप उसके प्रोसेस पे नहीं जाते कि ऐसे कैसे बना है ये सेंटेंस। बात समझ में आ रही है कि अगर कोई 5 वर्ड का इंग्लिश में सेंटेंस है तो वो 5 वर्ड एक दूसरे के साथ किस वजह से ऐसे जुड़े हैं, वो नहीं सोचना। यही है प्रोसेस फॉलो ना करना। अगर आप ये सोचते हैं तो अगले दिन वो 5 वर्ड की जगह कोई और 5 वर्ड्स होंगे और आपको प्रोसेस समझ में आएगा और वो भी सही होंगे। लेकिन अगर आपने उन 5 वर्ड्स की हिंदी याद करी है दिमाग में कि ये इसका ये मतलब होता है, ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है। कल मैंने कल्पना से एक सेंटेंस पूछा कि अगर आप सुनोगे, मान लो अगर आपने सुना he didn't stay there until late. He didn't stay there until late. अब सब लोग अगर ये सेंटेंस सुनते हो ऑडियो फाइल में किसी जगह या टेक्स्ट में पढ़ते हो, he didn't stay there until late, तो आपको क्या क्या ऐसा बताया गया है जो इस सेंटेंस में आपको दिखता है कि सर ने ये बताया, सर ने ये बताया, बताइए इस सेंटेंस में क्या क्या दिखता है जो मैंने बताया आपको क्लास में। he didn't stay there until late. ये until late तो होगा ही नहीं सर। until थैंक यू संयुक्ता मैम, आप गलत हैं, आप छोड़ दीजिए उस बात को, आप छोड़ दीजिए उस बात को, आप गलत हैं वहां पे। क्या होगा नहीं होगा ऐसे कोई वजह नहीं आपके पास ऐसा बोलने की, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि मैंने ऐसा क्या क्या सिखाया है जो इस सेंटेंस में अप्लाई होते हुए दिख रहा है आपको। आप में से कोई भी बता सकता है, एक एक बात सब लोग बताएं। इस सेंटेंस में ऐसा क्या क्या दिख रहा है आपको जो मैंने बताया है क्लास में और वो हो रहा है इस सेंटेंस में। प्रोसेस इसको कहते हैं। डिड का यूज, डिडंट और until यूज। थोड़ा सा रुक जाते शबनम, डिडंट बोले थे तो बहुत अच्छा था। कल्पना बोलिए मेरे बच्चे। सर डिडंट और until नहीं, and ऐसे नहीं will होता। one। आप खाली 2 वर्ड्स रिपीट कर रहे हैं, कुछ समझा नहीं रहे मुझे कि मैंने नो सर आपको ये आपने ये बताया, ये हो रहा है इस सेंटेंस में, ये नहीं बता रहे आप। थोड़ा और खुलिए, इसीलिए आप गलतियां करोगे क्योंकि सर आपको पास्ट क्लियर नहीं टेंस, है। चलिए पहले सर शबनम को बोलने पास्ट देते, टेंस सब लोग छोड़ बताया दिए, जा रहा शबनम है। को बोलने दीजिए। शबनम अकेले, यस शबनम। सर पास्ट टेंस और वर्ब का अरेंजमेंट एंड until का यूज इसमें हुआ है सेंटेंस में। ये बात बोल के क्या ही साबित करे कि अंटिल का यूज हुआ है। आप सुनिए, सर मैं आई रुक जाइए कल्पना। पास्ट टेंस का इसमें यूज हुआ है सर, पास्ट टेंस का। ऐसे बताया, पास्ट ऐसा टेंस नहीं नेगेटिव। मैं बताता हूँ शबनम, मैं कहता हूँ वर्ड्स को देखो। वर्ड्स का अरेंजमेंट है सर। चलिए ठीक है, कल्पना को बोलने दीजिए, मैं आता हूँ आपके पास। नेगेटिव सेंस में। ठीक है, थैंक यू। डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ये बात आई ना मजेदार बोलने वाली कि ये चीज होते हुए देख रही है, ये प्रोसेस अंदर घुस के कि डिडंट के साथ या डिड के साथ हमेशा V1 आता है भी V1 इसमें। डिडंट स्टे, ये लाइन बोलना मायने रखता है, अपने दिमाग को याद कराना। क्या मैंने ये बात बोली कि डिड के साथ V1 रहेगा? यस सर, ये चीज होते हुए दिखना चाहिए आपको कि डिड के साथ V1 है। इसको कहते हैं प्रोसेस करना। हिंदी मत करो, हिंदी कोई मायने नहीं रखती। तुम ये चीज करो कि सर ने जो बताया वो चीज हो रहा है कि नहीं। और बताओ कल्पना, डिडंट के साथ स्टे लगाया, V1 लगाया, और बताओ। स्टे क्या था सर सेंटेंस? He didn't stay there until late. Until late. I didn't. And did के पहले सब्जेक्ट आता है। वो तो है ही। मत बोलिए वो तो है ही, यही तो मैं कह रहा हूँ। जो चीज को आप गारंटेड ले रहे हो, मैं उसको कहता हूँ प्रोसेस समझो और उसको रिपीट करो कि ये होता है, हर बार होगा। सब्जेक्ट प्लस डिड, सब्जेक्ट एंड डिडंट, V1। चलिए दूसरा सेंटेंस लीजिए। ऑब्जेक्ट और until। He couldn't sing he couldn't sing a word. He couldn't sing a word। उसके बाद इस सर सेंटेंस को अगर आपने सुना तो रेनू आप जाओ, इस बार आपकी बारी। रेनू बोलो, क्या प्रोसेस सुनने को मिला? कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे हम, और ये पास्ट फॉर्म में कुड ही यूज करेंगे। पास्ट की बहुत बात बढ़िया, और बताओ और क्या अप्लाई होते हुए दिख रहा है आपको इस सेंटेंस में जो आपने सुना है, जो आपने सीखा है? कैन यू प्लीज कुडंट सिंग। एक ऑब्जेक्ट भी होगा सर। पहले रेनू को बोलने दो, मैं आपके पास आता हूँ अपूर्वा थोड़ी देर में। रेनू
सर कैन यू प्लीज रिपीट वन मोर टाइम सर? ठीक, couldn't आपको sing सेंटेंस नहीं याद है? सर couldn't sing के बाद I forgot सर. He couldn't sing a word. He couldn't sing a word. बताओ क्या क्या गौर कर रहे हो आप लोग इस सेंटेंस में? सर वन ए का यूज करेंगे एक सॉन्ग का मतलब निकलेगा इसका अ वर्ड और बिकॉज वर्ड डब्ल्यू से शबनम रहने दीजिए, अभी आप पहले रेनू को बोलने दीजिए, एक एक करके बारी बारी। जो लोग ऊपर नीचे बोलेंगे तो मुश्किल होगी। रेनू आप बोलते जाओ। सर और डब्ल्यू से शुरू है वो वर्ड तो ए का यूज कर लेंगे हम क्योंकि वर्ड आ रहा है वहाँ। बहुत बढ़िया रेनू, आप बहुत चीज गौर कर लेती हो, बहुत कुछ गौर कर लेती हो, बहुत अच्छी बात है ये। ओके, आई एम हैप्पी विद द प्रोसेस यू आर फॉलोइंग। ठीक है, जब भी आप सेंटेंस सुनो तो ऐसी चीजों को गौर किया करो। चलो अभी जाएंगे अपूर्वा के पास, देखते हैं अपूर्वा कितना चीज बता पाती है, क्या क्या गौर करती है सेंटेंस में। Why didn't you ask him? Why didn't you ask him? सर डिडंट यूज हुआ है तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किए हम लोग, और क्वेश्चन सेंटेंस है तो वहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट डाले हैं डिडंट के बाद में कि किसके बारे में बात हो रहा है, और मतलब जो पूछ रहा है सर उसके बारे में WH क्वेश्चन या फिर कोई क्वेश्चन सेंटेंस अगर डिड से स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट यूज करते हैं ना सर, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट यूज किए हैं यू, वाई डिडंट यू, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किए हैं क्योंकि डिड है। और कुछ गौर कर सकते हैं आप? Why didn't you ask him? सर तिकरी, अगर मतलब तिकरी तो ऐसे यहाँ डिडंट है ना सर, तो तिकरी ऐसे नहीं बोल सकते ना सर। आप लड़ाई कर रही हैं अपने आप के साथ। मैंने कहा कि आपने क्या क्या चीजें गौर करी हैं। आपकी बारी, आप बोलते जाइए, लड़ाई मत करिए, बताते जाइए कि मैंने ये गौर किया, मैंने वो गौर किया, ये तो नहीं करेंगे ना, वो तो नहीं करेंगे। ये सब लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। डिडंट यू आस्क अगर देखें तो तिकरी बोल सकते हैं, और डिडंट मतलब डिड का यूज हुआ है तो वहाँ पे हम V1 का यूज कर रहे हैं, और WH क्वेश्चन है तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे सब्जेक्ट डाले हैं डिड के बाद में, तब वर्ब का यूज किए हैं। अपूर्वा बहुत कुछ छूट रहा है इसमें जो आपको देखना चाहिए। लास्ट में ऑब्जेक्ट हिम जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है सर। क्वेश्चन मार्क। आप हमें सिखा रही हैं, बता रही हैं, आप ये नहीं बता रही कि आपको क्या बताया गया जो वहां अप्लाई हो रहा है, बस ये बताना था। मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरे क्वेश्चन को बहुत गौर से सुना करो। प्रोसेस फॉलो करने का मतलब आपको क्लास में क्या सिखाया गया जो उस सेंटेंस में अप्लाई हो रहा है। कितना सिंपल है सवाल। आपको ऐसा क्लास में क्या सिखाया गया जो उस सेंटेंस में अप्लाई हो रहा है। तो WH क्वेश्चन जब हम लोग मतलब पास्ट फॉर्म का जब पूछते हैं तो वहाँ पे हम लोग डिड का यूज करते हैं, डिड के बाद में हम लोग कोई सब्जेक्ट डालते हैं, उसके बाद वर्ब का फॉर्म आता है और एक ऑब्जेक्ट भी है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो हिम जो है वो यहाँ एज ए ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है। सॉरी अपूर्वा, और भी बहुत कुछ देख सकती थी आप जो आप नहीं देख पाई, क्योंकि आपके दिमाग में है नहीं। उससे आप सेंटेंस समझ जाओगे, हिंदी समझ जाओगे, लेकिन वो बात जो गौर करना था प्रोसेस में 100% प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। आप क्या पूछ रहे थे बेटा? कुडंट को अगर तोड़ेंगे तो वो प्रेजेंट है, वो कुड प्लस V1 है। कैन का पास्ट कुड होता है। कैन का जैसे मुझे तैरना नहीं आता है तो आई कांट स्विम। मेरे पापा को तैरना नहीं आता था, माय फादर कुडंट स्विम, तो कैन का पास्ट है कुड।
लेकिन दोनों के बाद V1 ही होता है। एक प्रेजेंट में एबिलिटी बताते हैं, एक पास्ट में एबिलिटी बताते हैं। गांधी जी को तमिल बोलना नहीं आता था, इंग्लिश। अच्छा अपूर्वा बेटा, आपको बताते हैं, आप कह सकती थी सर अगर असर्टिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस होता है उसके बाद में डिड यूज करते हैं क्यूट, क्वाइट शबनम आई कांट हियर अपूर्वा। शबनम यस अपूर्वा। यस सर अगर हमारा जो असर्टिव सेंटेंस मतलब सिंपल जो पास्ट सिंपल सेंटेंस होता है या फिर कुछ भी होता है वहां पे सब्जेक्ट के बाद अगर हम लोग डिड यूज करते हैं तब वर्ब आता है। लेकिन यहाँ पे WH क्वेश्चन है तो यहाँ पे डिड के बाद वो चीज आ रहा है। जैसे यू डिड अगर मतलब अगर हम लोग बोलते हैं यू डिड समथिंग या लाइक दैट, लेकिन यहाँ पे डिड के बाद यू हो रहा है। अब बहुत परेशान हो गए और ज्यादा परेशान हो गए, पता नहीं क्या क्या बोल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं छोड़ देता हूँ उस बात को, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि आप यहाँ एक बात बोल सकती थी कि सर हम लोग आस्क के बाद डायरेक्ट बोलते हैं somebody। देखिए आस्क हिम है सर, आस्क टू हिम नहीं है सर। हम लोग को पढ़ाया गया है कि आस्क के बाद डायरेक्ट somebody बोलना है। यस सर। ये बात आपने हाईलाइट नहीं करी। नो सर। यही बात पॉइंट है, ये प्रोसेस है दोस्तों, कि आपके दिमाग नोटिस करे, क्योंकि मैंने आपको हाईलाइट कराया है। आस्क समबॉडी, पापा से मांगो पैसा, पापा से जाके पूछो, गो एंड आस्क पापा। यस सर। आप में से कई लोग कर जाएंगे आस्क टू पापा, क्योंकि आप इस प्रोसेस पे ध्यान नहीं देंगे। क्या कर जाएंगे आप गलत? टू लगा देंगे बहुत लोग, क्योंकि आप इस बात को गौर नहीं कर रहे ना। तो जब आप सुनो इंग्लिश में ऑडियो फाइल और जब आप टेक्स्ट पढ़ो तो क्या गौर करो कि जो आपको बताया गया वो अप्लाई हो रहा है। क्या क्या बताया गया जो अप्लाई हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करो। इसको कहते हैं प्रोसेस फॉलो कर। डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट गाइस, डोंट वरी अबाउट राइट और रॉन्ग। कल जब टेक्स्ट पढ़ना कहानियों को खत्म करने के लिए, तो मीनिंग तो निकालोगे ही, साथ ही साथ इस बात पे ध्यान देना कि ऐसा क्या क्या पढ़ाया गया जो तुम गौर कर सकते हो। जहां कंफ्यूजन लगे कोई तरह का, उसको हाईलाइट कर देना। कल डिस्कस करेंगे क्लास में हम लोग दोनों टेक्स्ट को, द फर्स्ट एयर जर्नी एंड द फर्स्ट मैन ऑन द मून। फाइन, shall we wrap up for today? Yes sir. Okay, everybody has the book, everybody has the stories. Yes sir. Shall I send the pages in the group? No, sir. I'll send the pages in the group, okay? Fine. Okay, Bye sir. everyone. See ya. Bye, sir. Bye-bye. Bye sir. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye everyone.